Election Commission of India has declared the schedule for the upcoming Lok Sabha elections. So for Goa, we are in phase 3. So date of issue of Gazette notification will be 12th of April 2024. Last date for making nominations is 19th April 2024. Last date of withdrawal of candidatures is 22 April 2024. Date of poll is 7th of May 2024. And date of counting is 4th of June 2024, which is same for throughout India. So for North Goa, we have North Goa constituency, which consists of 20 assembly constituencies, including Priod. So for elections, the most important thing is e-roll. So e-roll updation is continuously going on, and as on date, North Goa parliamentary constituency has total 5,77,977 voters, out of which 2,80,260 are male voters, 2,97,714 are female voters, and we have 3 transgender voters registered with us, and we have 4,955 PWD voters. In addition to voters, we also are focusing on providing assured minimum facilities at all our polling stations as per ECI guidelines. So all these facilities include supply of drinking water, sheds, electricity, toilets and ramps. For PWD voters, wheelchair facility will also be provided at every polling station. As of today, we have 863 polling stations in North Goa parliamentary constituency. And as new initiatives, we have identified 20 of those polling stations as pink booths. So these booths will be manned by all women officials. We have identified 5 PWD manned polling booths. So all these 5 polling stations will be manned by PWD officials on the day of the poll. We have identified 43 model polling stations, and since the theme of this elections is green elections and we are focusing on making elections a sustainable process, we have identified 40 polling stations as green polling stations. Little louder. Okay, so sorry. So for this time, we have set up our teams. All our polling officials have been identified. They have all been trained. As of today, we have 12 AROs which will be assisting the RO, and there will be 20 AEROs, so one AERO per assembly constituency to assist the ARO. And since Election Commission is also focusing on making on 4 M's, which ECI had said in its press release, curbing money power, muscle power, and reporting on MCC violations and preventing misinformation. So our teams are also active, and we have stationed 23 flying squads in the field, and 16 static surveillance team are stationed in the district. So I urge all of the public to cooperate with these teams and to monitor violations of MCC. There is a very user-friendly Android-based app which is the C-Vigil app. So it's very easy. You just have to register yourself on the C-Vigil app and give your complaints regarding any MCC violations which you find in the public. So it can be any posters, any banners, any campaign which is going on, and it's very user friendly. You can also click pictures and upload on the app. You can also upload videos on the app, and these complaints will be immediately forwarded to the flying squads. So flying squad will tender to these complaints within a timeline of 100 minutes. And to curb unfair use of money in the elections, there is also election seizure management system through which IT officials, excise officials, and GST officials will be making seizures and updating on the eSMS app. In addition to this, we have also had interstate meetings with the neighboring states. We have met the District Collector Belgavi District and District Collector Sindhudurg to strengthen our border checkposts. So we have 6 border checkposts in North Goa district, and all our SSTs are also stationed at these 6 border checkposts. Regarding police deployment, SP sir will brief you.
जैसे कि आपको अभी कलेक्टर नॉर्थ गोवा मैडम ने बताया, पुलिस का इसके अंदर हमारा एक डिटेल डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है। जैसे कि पिछले असेंबली चुनाव में और उससे पहले 2019 की लोकसभा चुनाव के अंदर किया गया था। CAPF की एक कंपनी ऑलरेडी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिपोर्ट कर चुकी है। ये इसको हम डेली पुलिस स्टेशन वाइज पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। जो जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसके अंदर ये जाके वोटर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे काम कर रही हैं, ताकि किसी को भी कोई भय ना रहे, कोई खौफ ना रहे अपना मतदान को एक्सरसाइज करने में। उसी के साथ साथ हमने अपनी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी, मेजर बॉर्डर जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, नॉर्थ गोवा का सिंधु दुर्ग के साथ लगता है और एक हमारा बॉर्डर छोटा सा बेलगांव के साथ लगता है। उन सभी 6 पॉइंट्स पे हमारा 24 आवर्स का डिप्लॉयमेंट चालू है। CCTV कैमरास के थ्रू उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। स्टाफ को सख्त इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि वो काफ़ी इस पे ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार का मूवमेंट जो नहीं होना चाहिए बॉर्डर्स के अक्रॉस वो ना हो। और जब भी ऐसा केस रिपोर्ट होता है उस पर जो भी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। इसी के साथ हम एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ, इनकम टैक्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और वहीं पे महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो एक्साइज डिपार्टमेंट हैं और उनके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ हम कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन में हैं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि रात में हमारा रोज़ पुलिस स्टेशन वाइज एक ख़ास नाकाबंदी लगाई जा रही है। कल भी हमने हर पुलिस स्टेशन एरिया के अंदर शाम को 6 से 8 एक ड्राइव की थी, जिसके अंदर हम कोई भी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा हो या फिर कोई और मूवमेंट ऑफ कैश, लिकर या कोई फ्रीबीज का ना हो, उस पर हम सरप्राइज चेक्स कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज मतदान के दिन तक चालू रहेगी। जी, अभी तक कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ है। और जो इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंस हो, ऑब्वियसली अब अदर बाकी चीज़ें तो ऑफेंसेस रजिस्टर होते हैं, पर इलेक्शन रिलेटेड अभी तक ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, और वो जैसे ही हमें बताया जाएगा हम आपको उसके साथ जानकारी शेयर कर लेंगे। फिलहाल एक कंपनी है अभी तक रिपोर्ट करी है। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको अभी दे देता हूँ हिस्ट्री शीटर्स का, पर हर पुलिस स्टेशन के जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको पुलिस स्टेशन में बुला के उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जी, एक्साइज वो चालू हो गई थी जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है पोल का, उसी दिन से वो एक्साइज चालू है। हम कलेक्टर ऑफिस के अंदर रूटीनली एक्सटर्नमेंट के जो प्रपोजल्स हैं वो भेज रहे हैं। अभी पीछे कुछ समय में एक्सटर्नमेंट भी की गई हैं, ज़्यादा डिटेल्स आपको कलेक्टर मैडम बता पाएंगी। लेकिन जो भी इसके अंदर ऐसे हमें लगता है कि जिनको ज़िले से बाहर भेजने की ज़रूरत है, जो चुनाव के समय ऐसी गतिविधि कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारे प्रपोजल्स रूटीनली अपडेट किए जा रहे हैं और वैसे वो फॉरवर्ड भी किए जाएंगे उचित कार्रवाई के लिए। वो आइडेंटिफिकेशन अभी चल रहा है। वल्नरेबल पॉकेट्स और एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स का अभी सेक्टर ऑफिसर्स हमारे फील्ड में है और वो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे उन्हीं का रिपोर्ट आएगा हम इसको बता देंगे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गया है, बट फाइनल रिपोर्ट 3 डेज़ ऑफ अनाउंसमेंट के बाद आती है। तो 3 डे मतलब कल तक सारे सेक्टर ऑफिसर से रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद हम CO ऑफिस को 5 दिन के भीतर रिपोर्ट भेज देंगे। तो आपने जो पिन बूथ है, हाँ हाँ, लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पिंक बूथ रहेगा। तो 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है तो 20 पोलिंग पिंक बूथ रहेंगे। पिंक बूथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं पर फोकस करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि जो पोलिंग ऑफिशियल्स वहाँ है वो अपनी तरफ से कंफर्टेबल हो और जो मतदान करने आ रहे हैं वो भी वहाँ कंफर्टेबल हो और
वो प्रोत्साहित करे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मतदान करने आए। जी, जैसे लास्ट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी गई थी, तो इस बार भी 85 प्लस वोटर्स जो भी है वो अपना हक, मतदान का हक घर बैठे पोस्टल बैलेट थ्रू कर सकते हैं। इट इज़ वॉलेंटरी एक्सरसाइज, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो हु आर मोर देन 85 ईयर्स ओल्ड आर स्टिल विलिंग टू कम टू पोलिंग स्टेशन टू वोट। बट अगर जिनको आने में दिक्कत है और जो घर बैठ के मतदान करना चाहते हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी इस बार भी है। इन एडिशन टू सीनियर सिटीजन्स, PWD वोटर्स जिनकी मोर देन 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके लिए भी पोस्टल बैलेट फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा, द फॉर्म्स टू गेट देयर कंसेंट टू वोट फ्रॉम होम ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और उसके बाद जो जो वॉलेंटरीली चाहते हैं कि हम घर बैठे वोट करें, तो उसके लिए हम उनके घर तक टीम्स भेज के उसी दिन नहीं, मतलब जिस जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तब से हम उसका फॉर्म्स कंसेंट लेने के लिए भेजेंगे कि मैं चाहता हूँ घर से वोट करूँ। बट फिर उसके हिसाब से टीम्स बनाई जाएगी, और जैसे ही बैलेट पेपर फाइनलाइज होता है, कैंडिडेट्स के सारे नॉमिनेशंस फाइनलाइज होते हैं, फिर उसके बाद टीम्स एक एक करके हर किसी के घर पे जाएंगी। एंड हम पहले उनको इंटीमेट करेंगे जाने से पहले कि हमारी टीम आ रही है इस टाइम पे, तो आप आपके घर पे अवेलेबल रहे। और समझो कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो मतदाता उस समय पर घर पर अवेलेबल नहीं है, तो हमारी टीम उनको बताएगी कि आप, हम अगली बार और एक बार आएंगे, उस दिन आप घर पर रहना, उस दिन हम आपका वोट लेंगे। तो 2 बार तक हम उनके घर पे जाएंगे। अभी 4,955 वोटर्स हैं। अबव 40% का सर्वे अभी चल रहा है। All disabilities which are covered under Disability Act are included in this. And what will be, madam, what will be this postal ballot for staff required in the post? Will it be the this time? हाँ, तो पोलिंग ड्यूटी पे जो भी रहेंगे उनके लिए वो फैसिलिटेशन सेंटर पे आके अपना वोट देंगे। वो जहाँ पे उनका ट्रेनिंग होगा वहीं पे उनका फैसिलिटेशन सेंटर। यस। मई मंथ तो गर्मी का सीजन रहता है गोवा में, क्या वोटर्स के लिए कुछ फैसिलिटी ऐसा कुछ? देखिए, हम हर जगह शेड प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको धूप ना लगे। इन एडिशन टू दैट, क्योंकि हीट स्ट्रोक की भी चांसेस होते हैं, तो वील कीप अ मेडिकल टीम ऑल्सो विद आर सेक्टर ऑफिसर्स, एंड वील ऑल्सो हैव ORS पैकेट्स एंड अदर प्रोविजंस मेड एट द पोलिंग स्टेशन। I have a question for Northeast. You are talking of illegal liquor. I wanted to have a measures taken for illegal liquor supply, because normally they committees and take shelter in the neighboring area. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और बॉर्डर चेक पोस्ट को हमने स्ट्रेंथन कर दिया है। 24 घंटे की उस पर शिफ्ट लगाई गई है, और CCTV के थ्रू मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो अगर, तो उसको हम रैंडम चेकिंग कर रहे हैं और व्हीकल्स जब भी पाया जाएगा तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। Sorry? Is there any timing for? I think that question should be asked to the excise department, and because I think I'm not sure, maybe you can get it clarified from them, but depending on the licenses, different vendors have different closing timings, so वही आपको बता पाएंगे इसमें। Yes, so bar and restaurant में भी जो उनके there is a previous order also, जो उनके टाइमिंग्स हैं, जो उनके लाइसेंस कंडीशंस के अंदर दिए गए हैं, वो लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? I didn't get your question. कोस्टल बेल्ट में बीचेस साइड में और नाइट पार्टीज और डे नाइट 12-1 बजे तक कुछ म्यूजिक चलता है, उसके लिए कुछ क्या इंस्ट्रक्शन है इलेक्शन का?
इलेक्शन का ऐसा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट जो नॉर्मली जैसा इन्फोर्समेंट होता है वैसा होगा। पंजिम में बहुत जगह ऐसा है जो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर सब स्टेशन दिए गए हैं, तो वोटर को बहुत दिक्कत हो सकती है, तो कुछ बदल चेंजेस होगी क्या? जैसे आप सबको पता है कि ये काम ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है कि ये काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वोटर्स को कोई दिक्कत ना आए, बट पोलिंग स्टेशन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी आएंगे और हमारी तरफ से भी हमने एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर टीम्स लगा के रखी हुई है, उनका ट्रेनिंग हो गया है। एक्सपेंडिचर कैंडिडेट का उस दिन से माना जाता है जिस दिन से वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस हमारा रेडी है और हमारी टीम्स भी रेडी है। इन एडिशन टू दिस हमारे वीडियो सर्विलेंस टीम्स भी एक्टिव है और वीडियो व्यूइंग टीम्स भी एक्टिव है। कितना रहेगा इस बार खर्चा कैंडिडेट के लिए? रिसेंट नोटिफिकेशन कुछ चेंज हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। बैनर अभी तक निकाले जा रहे हैं, बैनर निकालने के लिए 72 आवर्स का टाइम होता है, तो जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो गए तो हमने बैनर्स निकालना चालू कर दिया है। हमने अभी तक 2000 के ऊपर बैनर्स निकाल दिए गए हैं और इसके आगे भी हम अभी 72 आवर्स में सारा बैनर्स निकाल देंगे। जो अंडर गोवा डिफेसमेंट एक्ट है उसके अंडर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। हाँ, जैसे नोटिफिकेशन के पहले और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाएगा। एंड आई अपील टू ऑल ऑफ द मीडिया प्रेजेंट हियर, वी विल नीड ऑल योर कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग दिस इलेक्शन। एंड फेक न्यूज़ पे आप बहुत ध्यान दें और इंश्योर करें कि आप कोई फेक न्यूज़ ना आगे फैलाए। एंड आई really want your coordination in this upcoming elections. And I have one message which I would like to say in Konkani. So I would like to appeal to all the electors to come in large numbers and vote on 7th May. So हांव सगळ्या मतदाराक विनंती करता की 7 मे रोजी व्हडल्या प्रमाणात येऊन मतदान करचे। थँक्यू, देव बरे करू। थँक्यू। I know 85 years, no? It can be 80 years, senior citizens. 80 years last time था, but ECI had